Hello students, I hope you all are doing well, and let's start our lecture with this problem. And also for your assistance I have given this log values. You may be finding difficult to remember, huh? So log 2 we have been using this log 2 value 0.3, then log 3 is 0.477, and similarly आपके पास जो values हैं log 10 की value क्या होती है 1 होती है क्योंकि all are base 10. ठीक है, सी में अगर नेचुरल लॉग की बात करते हो सो बेस में ई आता है. ठीक है, सो इस आपको ये सारी छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए. जनरली दिस वैल्यूज़ विल बी गिवन. ओके, वैल्यूज़ जनरली आपको दी जाती है, क्वेश्चन के नीचे आपको हो सकता है, पर मान लीजिए अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन हो तो आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो इन वैल्यूज़ का. आप पूछोगे सर आपने लॉग 4 की वैल्यू नहीं दी है, लॉग 6 की वैल्यू नहीं दी है, लॉग 7 लॉग 8 और 9 की वैल्यू नहीं दी है. तो मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताए थे. लॉग का क्या था कि लॉग ए इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस बी होता है. सो व्हाट इज लॉग ऑफ 4? So log of 4 is nothing but log of 2 square. So this is nothing but 2 into log 2. ठीक है, and what we know log 2 की वैल्यू आपको पता है, so you can find log 4 value. Similarly if you want to get that log of 6, so log of 6 अगर पता करना है क्या होगा, log of 6 is nothing but log of 2 multiply with 3. So this is equal to log of 2 plus log of 3, and what we know that this 2 value. Okay, so you can add this to. Similar log of 8, log 8 क्या हो जाएगा, log of 2 to the power 3. So this is coming to 3 into log of 2. ठीक है, सिमिलरली log 9, log 9 क्या हो जाएगा, log 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर. सो 2 मल्टीप्लाई विथ log of 3. सो इस तरीके से आप क्या है लॉग सॉल्व कर सकते हो. जो इसके यूज़ हम करेंगे, इसका यूज़ हमें कहीं कहीं करना पड़ेगा, जैसे पीएच कैलकुलेशन करते हैं तो आपको इसका यूज चाहिए होता है. ओके, सो लेट्स मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स डू दिस प्रॉब्लम. पीएच ऑफ द बियर इज 10. pH of beer is 10. Find out the hydroxide concentration, OH negative concentration they are asking. Okay, so what it is, what we know that pH is equal to negative log of H plus ion, negative log of H plus ion. This is given as 10. So anti-log, if you take the anti-log, what giving H plus ion concentration is coming to be 10 to the power minus 10. So what you find, H plus ion concentration 10 to the power minus. Anti-log if you will take, you will get क्या होगा 10 to the power minus 10 आ जाएगा. Okay, now after that what exactly we are getting from the last 2-3 lectures, we know what H plus ion multiply with OH ion, this is called Kw, and this is normal temperature, so this is equal to 10 to the power minus 14. So what their question is asking, hydroxide ion concentration. So OH negative is equal to क्या हो जाएगा 10 to the power minus 14 divided by concentration of H plus ion. Is this given in problem? Yes. So 10 to the minus 14 divided by 10 to the power minus 10. So this is equal to क्या हो जाएगा 10 to the power minus 4. Okay, molar. So this is the concentration of your hydroxide ion compound. ठीक है, so if you see pH of the beer is 10, so what it is, this is seems to be basic in nature. Okay, seems to be basic in nature, and that's why we saw that yeah, we have something called 10 to the power 5 moles per liter of hydroxide ion in the beer. Okay, now मैं चिंता मत कीजिए, मैं बढ़ावा नहीं दे रहा कि आप लोग जाके आप बियर पीना शुरू कर दीजिए, शैम्पेन पीना शुरू कर दीजिए. ठीक है, ये सारी चीज़ें पे बढ़ावा नहीं दे रहा आपको. अगर आपको इच्छा हो तो भी इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहने का प्रयास कीजिए. चीज़ें थोड़ी ख़राब हैं, बोलोगे सर ऐसे कैसे ख़राब हैं, जो चीज़ अब ऑलवेज बी ऑब्सेस्ड विथ गुड कैरेक्टर. ओके, गुड नॉलेज, गुड हैबिट्स. ठीक है, ऑब्सेस्ड विथ गुड हैबिट्स. सो इन सारी चीज़ों के प्रति ऑब्सेस रहिए, जो चीज़ें गलत हैं उनकी तरफ चौड़ी. अब बोलोगे सर यू आर अगेंस्ट विथ दिस बियर थिंग्स. नो, आई एम नॉट अगेंस्ट, but please apply your mind. Okay, and you will know that which is better, which is good, which is bad. Okay, fine. So now coming to that problem, मैं फिर से जो एक कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था लास्ट लेक्चर में, that 10 to the power minus 7 मोल ऑफ HCl है. so what is pH? ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन था, I think this was we got something wrong ना. so exactly we are going to solve this again. HCl है, this will give you H plus ion and chloride and aqueous. So this is concentration is same, so this is same concentration, correct? जो concentration ये होगा उसी का concentration ये होगा. so from here what we are getting 10 to the power minus 7 mole of H plus, कहाँ से, HCl से.
पर हमने क्या बोला था कि अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड अगर 10 टू द पावर -6 से क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, तो आप 10 टू द पावर -6 से आपका कम हो जा रहा है अगर आपका एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, वाटर से जो आपका डिसोसिएशन होने के बाद, वाटर के आयोनाइजेशन होने के बाद जो H+ कॉन्सेंट्रेशन है, वी हैव टू अकोमोडेट दैट ऑल्सो. सो लेट्स सी दैट. Okay, so water H2, when this gets ionized, gives you H+ ion, aqueous medium, and OH ion, aqueous medium. Clear है? Now what we were saying that yes, this has, due to this common ion, there is the shifting of reaction to the back. So what we know, this part at particular temperature 25 degrees centigrade, we will be talking about 25 only in the maximum cases, until or unless temperature is not specified. The moment temperature is specified, Kw value or the ionic product of water will be given. Clear? Okay. Now हम क्या बात कर रहे हैं, at 25 degree centigrade पे बात करते हैं. So what we know that at this particular temperature, this is 10 to the power -7 and this is 10 to the power -7. Since this both, the concentration of H+ coming from water, concentration of H+ coming from acid, both are what, significant. इनको आप नेग्लेक्ट नहीं करते. हम बाकी सारे में क्या करते हैं, नेग्लेक्ट किया करते थे, पर इनमें नेग्लेक्ट नहीं करते हैं. तो हमें क्या करना, दोनों की बातें करेंगे. तो चलिए सीधा प्रोसेस की बात करते हैं. क्या हो जाएगा, ये 10 to the power -7 से थोड़ा सा कम हो जाएगा. कॉमन आयन इफेक्ट वी शुड नो, दिस इज X, this is also X, and this is X plus 10 to the power -7, because this is the total concentration of H+ ion at equilibrium. Let us apply that Kw. So Kw is equal to X plus 10 to the power -7, and this is X, this is equal to 10 to the power -14. Why? Because what we know, that Kw is equal to 10 to the power -14. So simple equation we are going to solve. X square plus 10 to the power -7x minus 10 to the power -14 is equal to 0. A basic quadratic equation, we have to solve it. Okay, so let's solve. X is equal to minus b, so minus 10 to the power -7 plus or minus b square. What is b square? This is your b, so 10 to the power -14 minus 4ac, so minus 4ac, so minus plus 4ac, okay, divided by 2a, so 2. Okay, so let's solve it again. This is a minus 10 to the power 7 and यहाँ एक है, यहाँ, सो क्या हो जाएगा, इसमें से कॉमन 10 to the power -14 है, उसको बाहर निकालेंगे, क्या होगा, 10 to the power -7 root of 5 divided by 2. सॉरी, प्लस कर प्लस. ओके, सो क्या है, इस बंदे में से मैंने एक माइनस लिया. माइनस तो पीएच हो, क्या है, कॉन्सेंट्रेशन माइनस कैसे निकल सकता है, कॉन्सेंट्रेशन माइनस थोड़ी ना होता. तो ये है, अब मैं इसलिए मैंने प्लस का साइन लिया है. ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्लस का साइन इसलिए लिया है क्योंकि अगर आप माइनस डालोगे तो दोनों माइनस होकर कॉन्सेंट्रेशन माइनस में निकलेगा. दैट इज नॉट पॉसिबल. ओके, तो क्या है कि चलिए सॉल्व करते हैं. क्या आ जाएगा बताएंगे. दिस इज 10 to the power -7 कॉमन लेते हैं. So what we are getting, root of 5. What is the value for root of 5? Let's take 2 point, मैंने क्या लिया था, 2.3 लिया था ना. 2.3 या 2.2 कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. 2.2 minus 1 divided by 2. So exactly we are getting 1 point, is it 1? Sorry, 0.6 into 10 to the power -7. So this is the value of X. This is the value of X. Where is X? X. Now what is the total concentration? So total concentration of H+ ion is what is that? Let's find it out. This is X and this is 10 to the power 7. So this is 0.6 into 10 to the power 7 plus 10 to the power 7. So exactly getting 1.6 into 10 to the power -7. Now you can apply that pH things. So pH is equal to pH is equal to 10 what, negative log of H+ ion. Negative log of H+ ion. So what is negative log of what that, 1.6 into 10 to the power -7. What we did, इसको घटा के यहाँ पे 8 कर दीजिए. कर सकते हैं, आराम से करते हैं मैथमेटिक्स से. सो नेगेटिव लॉग, तो ये 8 आ जाएगा, तो 8 माइनस लॉग ऑफ
16। सो इसको और सॉल्व कैसे कर सकते हैं, 8 log of 2 to the power what 4, राइट, 2 to the power 4। सो 8 इंटू 4, टू log 2 की वैल्यू क्या है 3 है, सो 4 इंटू 3, सो 4 इंटू 0.301, सो दिस इज कमिंग टू 8 माइनस 1.2, so this is coming to 6.8, 6.8, so the value is coming to 6। हम लोगों को 6.95 आ गया था, तो थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे उसमें। सो पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे पीएच कैलकुलेट करेंगे। जी हाँ, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न हमारे बन सकते हैं, इसका थोड़ा सा हम सारे लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक दो प्रश्न और सॉल्व है, उसे सॉल्व करते हैं। जैसे कैलकुलेट पीएच ऑफ 10 to the power -8 मोलार, 10 to the power -8 मोलार HCl। ठीक है, सो अगर मैं बोलूं pH ऑफ 10 to the power -8 मोलार HCl, कैसे करेंगे, सेम तरीका। हाँ, तो सेम तरीका है, क्या है, प्रोसेस सेम है, H2O है, फर्स्ट ऑफ ऑल HCl, दिस इज गिविंग यू व्हाट, H प्लस आयन एंड क्लोराइड आयन, क्या हो जाएगा 10 to the power -8, ठीक है, 10 to the power -8, इसमें कुछ नहीं है, दिस इज कंप्लीटली डिसोसिएटिंग एंड गिविंग यू H plus ion। आफ्टर दैट व्हाट इज हैपनिंग, H2O we have, H2O gets ionized reversibly giving you H plus ion, aqueous medium and OH ion in aqueous medium। What we know that this is again reversible reaction, and being the reversible reaction, what exactly happening, this due to this 10 to the power -8 H plus ion, common ion effect is happening and the reaction will move backward। So after new equilibrium has been established, this let us say X be the concentration of H plus ion due to water, total H plus ion is 10 to the power -8, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, correct, this is remains X। so you can apply that, what is ionic product of water, so let's put that ionic product of water, what is this Ki, sorry Kw है, ionic product लिखो चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता। so Kw is coming to be H plus ion concentration and X, and this is coming to 10 to the power -40। so again after solve करने के बाद आपको क्या है, ये सारी चीजें solve करोगे and what you are getting, you will get some value like 6.9, 6.98 or something like that, 6.9, so you will be getting pH is equal to 6.98। ओके, अब थोड़ा सा एक शॉर्टकट है अपना, इतने जो कैलकुलेशन है, अगर आपके पास ऑप्शन बहुत अलग अलग हैं तो शॉर्टकट थोड़ा सा देख लेंगे, शॉर्टकट क्या है, या शॉर्टकट नहीं है, आप मतलब समझ लो कि ये मेथड सही नहीं है पर काम करता है, काम करता है। ओके, यहाँ पे देखेंगे क्या है, क्या है यहाँ पे 10 to the power 7, 10 to the power 7, जिस 10 to the power एक H plus 10 to the power 7 आ रहा है HCl से, एंड 10 to the power -7 आ रहा है H2O से, ठीक है, ये चीज है। यहाँ पे ये थोड़ा सा कम इसलिए हो जाता है क्योंकि कॉमन आयन लगता है। मैं बोलूंगा कि ठीक है, मैं भूल जाता हूँ कि वो कॉमन आयन लगता होगा, मैं भूल जाता हूँ कॉमन आयन लगता है कि नहीं लगता, मैं भूल गया, ठीक है, मैं मुझे नहीं पता कि कॉमन आयन लगता है या नहीं लगता। ओके, सो मैं भूल गया कि कॉमन आयन लगता है, सो दिस इज कमिंग टू बी 2 into 10 to the power -7। ओके, सो 2 into 10 to the power -7 आ रहा है, ठीक है। सो जब ये 2 into 10 to the power -7 आ रहा है तो ठीक है, pH पता कीजिए, pH is equal to log of 2 into 10 to the power -7, so you will be getting 6.7, fair enough। this is 6.8 आ रहा है इतने सारे कैलकुलेशन से, और 6.7 आ रहा है बेसिक कैलकुलेशन से, तो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे है ये 10 to the power -8 मोल है, दिस इज कमिंग फ्रॉम HCl, और 10 to the power -7 आता है किससे, वाटर से आता है, दोनों को जोड़ते हैं तो लेट्स राइट 10 to the power -7 प्लस 10 to the power -8। ये जो मैं कर रहा हूँ ना, व्हाट आई एम डूइंग एग्जैक्टली 10 to the power -8 जस्ट एडिंग, दिस इज रॉन्ग, करेक्ट, बिकॉज द वैल्यू इज, जो वैल्यू आएगा जो x होगा दैट इज नॉट 10 to the power -7, दैट इज लेस देन सम वैल्यू, लेस देन 10 to the power -7। बट क्या है कि अपने को तो टाइम कम है, सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट अप्रोक्सीमेट इट। सो व्हेन वी आर अप्रोक्सीमेटिंग दिस वैल्यू इज कमिंग टू बी 1.1 into 10 to the power -7, fair enough, 1.1 into 10 to the power -1 किया जा सकता है, जी हाँ कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
Okay, so log of 1.1 into 10 to the power minus 7. So this is coming to be 7 minus log of 1.1. So 7 minus 0. This is coming to be some 0.2 or 0.3, something 0.3 is coming. 1.1, 0.3 coming. So this is 7 minus 6.97. 6.97. So this is approximately good. Very nice. So आप क्या कर सकते हो, या तो ये प्रोसेस फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको प्रोसेस फॉलो करने की इच्छा नहीं है, अगर ऑप्शन काफी दूर दूर है, ऑप्शन काफी दूर दूर है, सो व्हाट यू कैन डू, यू जस्ट डायरेक्टली डू क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशन दोनों को सिंपली जोड़ दीजिए। अब x वाला काम मत कीजिए, सिंपली जोड़ दीजिए और pH निकाल लीजिए और आपको क्या आंसर आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट, वेरी नियर आएगा, आंसर काफी नजदीक वाला आ जाएगा, तो आप उसका यूज कर सकते हो। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या है प्रश्न आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, इन लोगों को जब हमने कर लिया, हमने बात करी थी स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करी थी, अभी तक हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहे हैं, और कौन सा, मोनोप्रोटिक स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें। अब हम बात करेंगे डाइप्रोटिक स्ट्रॉन्ग एसिड, सिमिलरली डाइप्रोटिक स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस मोनोप्रोटिक डाइप्रोटिक स्ट्रॉन्ग एसिड and base. Then after that we will be seeing the mixture of acids, strong acids and strong base. Mixture of acids and base. Okay, so what's that? Diprotic strong acids. Now exactly what is happening, how many ऐसे कौन से आपके डाइप्रोटिक एसिड्स हैं जो स्ट्रॉन्ग है, वी नो H2SO4। ठीक है, तो मान लीजिए H2SO4 है, अगर आपको H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, व्हाट इज द pH फॉर दैट सॉल्यूशन, कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, सिंपल लग रहा है, जो हमने सीखा है ना चीजें पहले, उसी तरीके से हल्का सा सिंपल क्या है, लेट्स टेक 0.1 मोल ऑफ H2SO4, फाइंड pH, फाइंड pH ऑफ द सॉल्यूशन, कैसे बताएंगे। ठीक है, सो pH के लिए क्या पता होना चाहिए आपको, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन पता होना चाहिए, ये पता है। अब देखिए, जितने भी pH खेला जो हम कर रहे हैं, इतने दिनों से खेला जो चल रहा है, अभी pH का जो खेला चल रहा है, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी आइडिया से आपको H+ कॉन्सेंट्रेशन उठा के लाना है। H+ कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, नेगेटिव लॉग लगाइए और pH पाइए, तो अपना काम इतना जो हम माथा खपा रहे हैं, क्यों, किसी तरीके से H+ मिल जाए मुझे, तो हमको H+ निकालना है। सो 0.1 मोल, 0.1 m का मतलब क्या है, दैट मीन्स 0.1 मोल H2SO4 इन 1 लीटर। सिंपल, व्हाट डज इट मीन, दिस मीन्स एक H2SO4 में 2 H+ आयन, सो 0.1 इंटू 2 मोल H+ ion in 1 liter. What is the molarity of H+ ion or concentration of H+ ion is 0.1 into 2 divided by 1, so 0.2 मोल। समझ में आया कि एग्जैक्टली हमने किया क्या है, हमने क्या किया है, किसी तरीके से H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकाला है। सिंस वो H2SO4 है, तो H2SO4 होने के कारण एक मॉलिक्यूल में कितने होते हैं, 2 H+ होते हैं, एक मोल में कितने होंगे, 2 मोल होंगे, तो 0.1 मोल में कितने होंगे, 0.2 मोल होंगे, तो जब 0.2 मोल है तो हमको पता चल गया दिस इज H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, नाउ फाइंड pH। नेगेटिव लॉग 2 into 10 to the power minus 1 लिख सकते हैं, या 1 माइनस आप लिख सकते हो 0.3, so what is it, this is coming to be 0.7, so 0.7 is the pH for this particular H2SO4 solution। Similarly मान लीजिए आपके पास है कि 0.2 मोल, molarity is 0.2 मोल बेरियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो अब इस केस में क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि 1
1 m का मतलब क्या होता है? 1 m का मतलब होता है 1 मोल ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। कितने मोल है? 0.2 मोल। 0.2 m का मतलब है 0.2 मोल ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। और क्या पता है कि 1 मोल बेरियम हाइड्रोक्साइड मीन्स 2 मोल हाइड्रोक्साइड एंड 0.2। सो टोटल कितना हो जाएंगे? OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0.4। क्यों? 2 है एक में, तो 0.2 में कितने? 0.4। सो नाउ लेट्स फाइंड POH। POH फाइंड किया, सो POH क्या हो जाएगा पता है? नेगेटिव लॉग ऑफ OH आयन। सो दिस इज कमिंग टू बी negative log of 0.4. So this is can anyone tell me? Negative log of 4 into 10 to the power minus 1. So 1 minus log of 4. So 1 minus log of 4 क्या होगा बताइए? So POH is a 1 minus log of 4. So simple है, where is log 4? 2 into log 2. So 0.6. So 0.6 क्या हो जाएगा बताएंगे क्या? This is coming to be 0.4. 0.4 आ रहा है, ठीक है। 0.4 आ रहा है। एंड देन व्हाट इज पीएच? क्वेश्चन तो पीएच पूछ रहा है, सो क्या होगा? pKw माइनस POH। सो pKw इज 14 माइनस 0.4, सो दिस कम टू बी 13.6। 13.6। सिमिलरली इसी तरीके से इसको देख के 13.6 देख के मुझे एक याद आया कि मान लीजिए आपसे मैं पूछे 4 मोल HCl, 4 मोल HCl, फाइंड pH। फाइंड pH, 4 मोल HCl, फाइंड pH। तो क्या करोगे? बोलोगे सर 4 मोल है, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो वाटर का जो H+ का कंसंट्रेशन उसको नेग्लेक्ट कर देंगे और सिंपल लिख देंगे। तो कौन सा H+ कंसंट्रेशन इज कमिंग टू बी 4, सो लॉग ऑफ क्या हो जाएगा बताइए? लॉग ऑफ 4, सॉरी pH, नेगेटिव लॉग 4। सो नेगेटिव लॉग 4 की वैल्यू बताएंगे क्या कोई? लॉग 4 की वैल्यू है 0.6, सो माइनस 0.6 आ रहा है। अब अलग से ये pH माइनस में कैसे आ गया? pH माइनस में कैसे आ गया? आपने तो बोला था pH तो नेगेटिव होता ही नहीं। ठीक, pH नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव pH का मतलब है कि दैट कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी 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 हाई। कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है। हम कॉन्सेंट्रेशन हाई की बात करें, जब हम pH की जो हमने बात करी थी तो याद है हमने एक्टिविटी की बात करी थी, ठीक है। तो हमने बोला था डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए गामा इज इक्वल टू 1, अदरवाइज क्या होगा? गामा C/C0, ठीक है। C0 की वैल्यू 1 है, तो क्या गामा इंटू C। तो अगर आपका ये 4 है तो गामा क्या होगा? किसी न किसी तरीके से गामा की वैल्यू कम हो जाएगी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, तो गामा की वैल्यू कम हो जाएगी और वो एडजस्ट करके उस pH के अंदर, स्केल के अंदर डाल देगा। बट ये माइनस ऐसा नहीं है कि pH नेगेटिव नहीं, pH नेगेटिव हो सकता है, ये आ रहा है, स्केल पे नहीं दिखेगा, इसका ये मतलब है कि pH नेगेटिव नहीं, pH नेगेटिव हो सकता है। और वो क्या बताता है? वो बताता है कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है काफी ज्यादा है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा है। चलिए इस चीज को आपने देखा। अब हम बात करते हैं किसकी? बात करने जा रहे हैं हम वीक एसिड और वीक बेस। सो हम लोग pH कैलकुलेट किसे करेंगे? वीक एसिड एंड वीक बेस की pH कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो मान लीजिए कोई pH ऑफ वीक एसिड, अगर आपने एसिड का सीख लिया तो बेस भी वही चीज है, कोई नई चीज नहीं है। अगर एसिड जैसे एसिड का निकाल रहे हैं वैसे बेस का निकालते हैं। तो आपके पास मान लीजिए कि 0.1 मोलार आपका CH3 है, CH3COH। तो सिंपल है, हमारा मेन फंडा क्या है? किसी तरीके से H+M कॉन्सेंट्रेशन निकालिए और आप आराम से pH कैलकुलेट कर सकते हो। तो CH3, this associates giving you CH3COO negative and H+M. This is aqueous. Okay, so simple है, this is C into 1 minus alpha C alpha। ये पता निकालें किसे किसे। If we somehow find it out, this is C alpha, we will be able to solve that, and Ka for this is given as 1.8 into 10 to the power minus 5. I told you initially.
ठीक है, ओके। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। हमें किस तरह से ये वैल्यू निकालना है, ये वैल्यू हमें निकालना है। तो अगर वो निकल गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो के आई आयोनाइजेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होगा, सी अल्फा मल्टीप्लाई विद सी अल्फा डिवाइडेड बाय सी इंटू 1 माइनस अल्फा, कमिंग टू बी एक से गया तो क्या हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। अब क्या है, आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए व्हाट वी आर डूइंग, फाइंड आउट अल्फा। अल्फा एग्जैक्टली कैसे पता करते हैं, अल्फा पता करने का तरीका बताया था, क्या था, अंडर रूट ऑफ के आई बाई क्या था सी। सो अंडर रूट ऑफ के आई क्या है बताइए, 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय 0.1, सो 10 टू द माइनस 1, सो दिस कम टू बी 0 10 to the power minus 2 into under root of 1.8. So this is coming to be yes. So 0.0. What is that? 0.013. Okay. So yeah, this is 0.05, less than 0.05. 0.05 से कम है. So yes, we can find it out from there. कि अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा नेगलेक्ट किया जा सकता है। सो क्या है, सो अल्फा क्या है 1 माइनस अल्फा। अल्फा जो है आपका, अल्फा काफ़ी 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 कम है। सो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1। सो अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है 0.0134 आ रही है, लेट्स राइट 0.01। पर एग्जैक्टली हमें तो कॉन्संट्रेशन और एक्सप्रेस चाहिए। सो हमें ये मुद्दा ये है कि हमें किसी तरीके से एक्सप्रेस का कॉन्संट्रेशन पता करना है। सो सी अल्फा, सो सी इज 10 टू द पावर माइनस 1 एंड 0. इसको आप लिख सकते हो 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। सो दिस कम टू बी अप्रॉक्सीमेट 10 टू पावर माइनस 3। सिंपल आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो पी एच नेगेटिव लॉग ऑफ 10 टू द पावर माइनस 3, सो पी एच इज कमिंग टू बी 3। तो इस तरीके से आप क्या है सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा काम है। मेन मुद्दा क्या है, आपको किसी तरीके से ये निकाल दीजिए और आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली इज अ केस फॉर बेस। अगर आपको बेस निकालना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, पार्शियल डिसोसिएट होगा अमोनियम आयन एंड OH नेगेटिव। सो दिस इज अगेन Kb. For this ionization constant Kb is 1.8 into 10 to the power minus 5. Again also you know that this alpha for this particle reaction is very small. So क्या है C into 1 minus alpha C alpha. So what is alpha? Alpha is again alpha same. Alpha is क्या हो जाएगा, since 1 is this one is greater than alpha, that means 1 minus alpha approximate is equal to 1. So alpha is equal to under root of ki by क्या होता है c होता है। So under root of ki 1.8 into 10 to the power minus 5 by c is 0.1 mole, 0.1 mole only। okay, c की वैल्यू 0.1 ही ले रखे हैं। तो क्या है, this is also again coming to 0.134। हाँ, अल्फा की वैल्यू ये आ रही है। ओके, नाउ OH आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगा आपका, OH कॉन्सेंट्रेशन आ गया है आपका C अल्फा यानी कि 10 to the power minus 3 C अल्फा। आप बोलोगे सर आपने वो 1.3 किलो से या पर स्मॉल, वी कैन नेग्लेक्ट इट, नॉट बिग थिंग है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर आपको क्या चाहिए, पीएच चाहिए। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालना पड़ेगा, या आप सिंपल ही POH निकाल लीजिए। POH इज कमिंग टू बी +3 and what is pH? pH is equal to pH plus POH is equal to 14. So pH is equal to क्या होगा 14 minus POH and this is equal to 14 minus 3, so 11। so आपका pH क्या आ जाएगा 11। तो इसका ध्यान रखें, खासकर बेस के केस में बहुत सारे लोग क्या हैं कि आप सिंपल pH निकाल या POH निकाल के छोड़ दोगे, ठीक है। तो नहीं, आपका काम है कि यहाँ पे पहुँचे। ऑप्शन में 3 भी रहेगा, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और इसके बाद इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। फिर हम बात करते हैं किसकी, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेस की बात करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है अपना ठीक ठाक कर लीजिए, क्योंकि जो है ये जो आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको कैलकुलेशन ही करना है बहुत सारा। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखेंगे इसका कि आप कैलकुलेशन से भागना नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ा सा करना सीख लीजिए। खासकर केमिस्ट्री में आप लोग कैलकुलेशन करते नहीं हो,
तो इसमें थोड़ा सा आपसे अर्ज करता हूँ कि आप लोग केमिस्ट्री में कैलकुलेशन करते रहिए। हाँ, ओके। सो अब बात कर रहे हैं मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, इनकी बात हम करने जा रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले तो दो एसिड को मिला लेते हैं। दो एसिड कोई भी दो एसिड है, मान लीजिए आपके पास है कि 500 ml HCl प्लस 500 ml 0.1 molar HCl प्लस let's take 500 ml 0.1 molar H2SO4 mixture. Find pH of resulting solution. ठीक है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का पीएच बताइए। कैसे करेंगे? आपको मूल कॉन्सेप्ट में याद होगा कि व्हाट एग्जैक्टली वी वर डूइंग, वी वर एबल टू फाइंड H+ आयन एट द सॉल्यूशन। वी वर finding H+ ion at the solution, resultant H+ ion in the solution. So first of all find resultant H+ ion, भैया निकालो H+ ion. So if you find H+ ion in the solution, how to find that? From HCl, 0.5 multiply with 0.1, so this is what 0.05 mole H+ ion. From H2SO4, what it is? 0.5 liter multiply with 0.1 into 2, because one molecule contains 1 H plus 2 H plus ion, so this is coming to be 0.1 mole H plus ion. Molarity or the concentration of H plus ion, please find it out. So molarity or concentration H plus ion is equal to number of moles, total number of moles, 0.1 plus 0.05, 0.15. Clear? 0.15 divided by liter, 500 plus 500, 1 liter, so this is equal to 0.15 molar. Now you can find out pH. pH is equal to negative log of H plus ion concentration. This is negative log of 0.15, or what you can negative log of 15 into 10 to the power minus 2. So this is 2 minus log of 15, or what you can say 2 minus log of 3 into 5. So 2 minus log 3 value 0.47, so 0.477, or let's write 0.8, and what is log 5 value? 0.7. So this is coming to be, can you tell me son for everyone? So 1.18, so this is 28.0, correct? Sorry, 1. So 1.82 is the pH for the resulting solution. Is this clear? What exactly we did? You have to find concentration of H+ ion in the resulting solution. H+ ion in the resulting solution, and find it out. Again, please make sure that your concentration are higher enough so that you can neglect that 10 to the power minus 7 wala thing. Yeah, the ionization of water. So you always keep in mind that your concentration are high enough to neglect this 10 to the power minus 1. Okay. Now what we are going to do, let us say acid base, strong acid plus strong base. What strong acid? You have H2SO4 or HCl or HNO3. These are the strong acids. Plus NaOH हो गया, और मान लीजिए KOH हो गया, और मान लीजिए कि बेरियम हाइड्रोक्साइड, and so on we have ना. So this is the strong base. So what exactly this is happening? The reaction will happen and your H+ ion concentration will decrease, or OH ion concentration will decrease. Okay, so let's solve some problem like this. 500 ml of 0.1 molar HCl is mixed with 200, let's say 500 ml 0.01 molar NaOH. Find pH. Same, find out H+ ion concentration in the resulting solution. Resultant. How to find? Number of moles here 0.05.
minus number of moles of OH minus here 0. Is this 0.05? Yes. Okay. Here number of moles of OH minus here. Can anyone tell me how much? 0.005. So this is coming 0.045 is the number of H plus ion. Okay, number of H plus ion divided by 1. So this is the concentration. So H plus ion concentration 0.045 or 45 into 10 to the power minus 3. Okay, 45 into 10 to the power minus 3. See, I am doing each and every step. मैं लॉग की सीधी वैल्यूज नहीं ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ताकि आप भी लॉग की सीधी वैल्यू ना लेके आराम से बना, हाँ, सबको याद ना करना पड़े। pH is equal to negative log 45 into 10 to the power minus 3. So 3 minus log 45. How to find this log 45? Log 9 into 5. Log 9 into 5. What is this log 9? 3 square. So 2 into log 3. So 2 log 3. What is 3? What is 3 value? 0.48. So 0.48 is 2 log 3 is 9.96 plus log 5 value is 0.7. So 0.7. Okay. So this is 3. Let's subtract it. 4. Then this is 5. Then this is 1. Okay. So this is what we are getting, 1.54. 1.5%. So if you see, if you have, you can check it. This pH is fine, and the concentration is, if this is 0.1 molar HCl alone, you will have pH 1. But if you see, the concentration of H plus decreased due to the reaction, neutralization reaction. So you know what is neutralization reaction? H plus OH giving you H2. That's what happening here. Okay, that's what happening. Some of the H plus is reacting with OH negative ion, and they are becoming neutral, and that's why your pH decreased from 1 to 1.54. अगर आप HCl की बात करते, अगर HCl अकेला होता तो pH is 1. pH is 1 here, correct? But due to the reaction, some of the H plus is क्या हो गए, खत्म हो गए, ठीक है। सो आफ्टर दैट सम H plus जब खत्म हो गया तो pH क्या होता है, pH इंक्रीज करता है। जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता जाता है, pH इंक्रीज करता है। सो pH क्या हो गया, 1 से 1.54 चला गया। तो इस तरीके से क्या है, आप स्ट्रॉन्ग ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन का pH पता कर सकते हैं। चलिए इनको नोट कीजिए, मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊँ, कुछ अच्छे और अच्छे आपके प्रश्न कराता हूँ, खासकर आपके एसिड एंड बेस के मिक्सचर, ठीक, ओके। चलिए इन दोनों प्रश्नों को बनाइए थोड़ा सा, ठीक है। ये प्रश्न क्या है, मिक्सचर ऑफ एसिड्स के हैं, और ये आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न है, जो मतलब ऑलरेडी आ चुके हैं प्रश्न। तो बड़ा ही आसान प्रश्न है, और देखिए कि ऑप्शन कैसे किस तरीके से दिए जाते हैं कि आप आराम से जल्दी से चूज कर लो, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे अभी आपके लिए 30 सेकेंड रुकता हूँ, वीडियो पॉज करके आप चाहो तो बना सकते हो। सो व्हाट इज द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर NaOH and 0.01 molar HCl are mixed, clear, okay। so इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, let's take इक्वल वॉल्यूम, नहीं इक्वल वॉल्यूम। मैं क्या करता हूँ, अपने जो न्यूमेरिकल्स वैल्यूज हैं, अपना कैलकुलेशन है, उसको आसान करने के लिए एक नंबर ले लेता हूँ। 1 लीटर ऑफ NaOH होगा, इक्वल वॉल्यूम बोला तो 1 लीटर ऑफ HCl होगा, करेक्ट। इसमें कोई बुराई नहीं, क्या है, इक्वल वॉल्यूम बोला तो मैंने 1-1 लीटर दोनों का ले लिया, अच्छी बात ले लिया। जब अच्छी बात है, जब आपने लिया तो क्या है, 1 लीटर NaOH का मतलब क्या है, OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन इज 0.1 मोल, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है 0.01, तो नंबर ऑफ मोल्स 0.01 मोल। तो आपको पता है कौन ज्यादा है, OH आयन ज्यादा बड़ा है, तो रिएक्शन होने के बाद बचेगा कौन, 0.1 माइनस 0.01, दैट इज 0.09 मोल ऑफ OH आयन बचा रह जाएगा, ओके, OH आयन बचा रह जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अब कॉन्सेंट्रेशन निकालिए OH आयन का।
सो दिस एट 0.09 मोल इन 2 लीटर। ठीक है, 1 लीटर ये 1 लीटर टोटल इस मिक्सचर का जो वॉल्यूम है 2 है। सो क्या आ रहा है 0.045 मोलर। हाँ, सो आपका क्या आ जा रहा है 0.045 मोलर है। तो POH निकालते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द पीएच, करेक्ट। सो पीओएच निकाल लें हम। इसका ध्यान रखेंगे, आप लोग तुरंत लगा देते, उसका थोड़ा सा वेट करेंगे। सो दिस इज 45 into 10 to the power negative log of 45 into 10 to the power minus 3. So this is coming to 3 minus log of 45. So just now मुझे लगता है कि हमने कैलकुलेट ही किया। सो दिस इज कमिंग टू बी 1 पॉइंट क्या था अगेन 1.4 1.4 और 3 समथिंग 1.4 और 3 समथिंग था, निकाल ही लेते क्या दिक्कत है। सो 3 माइनस log 9 मतलब कि 2 log 3 स्क्वायर log 3 दिस इज 4.8 so 0.96 प्लस log of 5 की वैल्यू क्या है 0.7 है। सो 0.7 है, हाँ, तो क्या आ गया 1.66 हटाना है तो ये 4 हो गया और ये 5 हो गया और ये 1.54 हो गया। दिस इज द POH नॉट PH, दिस इज POH। सो PH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए 14 माइनस 1.54। सो दिस इज कमिंग टू बी 6, दिस इज कमिंग टू बी क्या बताएंगे क्या, दिस इज क्या आएगा 4। सो दिस इज क्या आएगा बताइए 12.46 के आसपास आएगा। ठीक है, सो जो ये वैल्यू है, अब देखिए क्या है, क्या इतना कैलकुलेशन हमें करना चाहिए था क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या इतना कैलकुलेशन इस प्रश्न को सॉल्व करने की, क्या इतना प्रश्न जो हमने कैलकुलेशन किए हैं हमने करीब 3-4 मिनट इसमें अपने गंवाए हैं, क्या करना चाहिए था? जी नहीं, इस प्रश्न को इसीलिए दिया गया था कि आपके जितने भी कंपटीटर्स हैं कैलकुलेशन करेंगे और आप मैक्सिमम 10 सेकेंड्स में आंसर करके निकल जाओगे, सो दैट यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू सॉल्व अदर प्रॉब्लम्स। ओके, कैसे करते हैं? पीएच पूछ रहा 0.1 मोल NaOH है, दोनों की वॉल्यूम बराबर है। जब ये 0.1 मोल NaOH है 0.01 है, इसका मतलब है कि HCl का कॉन्सेंट्रेशन जो है, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है, वो बेस के कॉन्सेंट्रेशन से कम है। तो जब रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा वो डेफिनेटली बेसिक सॉल्यूशन होना चाहिए। सिंपल सी बात है, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बेसिक के एसिड का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो बेस के नंबर ऑफ मोल्स से कम है। क्लियर? सो क्या है, जो आपका रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा उसमें OH आयन ज्यादा होंगे, यानी कि सॉल्यूशन बेसिक होना चाहिए। कौन सा ऐसा आपका जो बता रहा है वो पीएच बेसिक सॉल्यूशन का बता रहा है? एसिडिक सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन, वेरी एसिडिक सॉल्यूशन, दिस इज द ओनली बेसिक सॉल्यूशन। टिक लगाएंगे, आंसर पाएंगे, दैट्स ऑल, नो कैलकुलेशन। प्लीज देयर शुड नॉट बी एनी अननेसेसरी कैलकुलेशन, यहाँ पे कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या है भाई, आखिर क्या है जो कैलकुलेशन चाहिए, कहाँ पे नहीं चाहिए। आपके जो नीट के प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत ही आसान होते हैं, थोड़ा सा आपको अप्लाई करना अपना माइंड। ठीक है, सिंपल। ये क्वेश्चन क्या है, ये आपका हाल ही का 2018 या 19 का ही आपका नीट का प्रॉब्लम है। प्रश्न क्या पूछा है, आउट ऑफ विच वन हैव पीएच इज इक्वल टू 1। इन सारे में से करेक्ट डू वी हैव सेम प्रॉब्लम, लेट मी चेक इट आउट अगेन। सो इनमें से कौन है जिसका पीएच जो है 1 के बराबर है? तो आप बोलोगे सर जी सबको कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। यस यू कैन, यू हैव टू कैलकुलेट इट। लेट्स, मैं क्या बताता हूं, पहले प्रोसेस फिर देखते हैं कि शॉर्टकट क्या है। ओके, तो pH 1 का मतलब सीधा सा होगा कि एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा होना चाहिए, यही होना है pH 1 का मतलब। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl क्या हो जाएगा, 60 ml है तो 60 into 0.1 so 6 मिलीमोल। देन 4 into क्या है, 4 into 0.1 40 into 0.1 so 4 मिलीमोल। कौन छोटा है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन छोटा है, एसिड का स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो क्या है, सिंपल सी बात है, एसिड ज्यादा। कितना बचेगा, 6 - 4 2 मिलीमोल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम मींस कितना है बताएंगे क्या, 60 into 40 100। सो 100 है तो क्या हो जाएगा बताइए, कितना बचेगा, क्या बता सकते हैं, 2/100 2/100। सो दिस इज कमिंग टू बी 2 into 10 to the power क्या होगा -2, 2 into 10 to the power -2। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं, क्या होता है कौन सा 2 into 10 to the power -2। pH की वैल्यू क्या है ये बताइए, 2 - log 2। सो 2 - log 2 इज 2 - log 2 कितना आ जाएगा बताइए,
पॉइंट log 2 की वैल्यू 0.3, सो 1.7। आगे बढ़ते हैं, ये 55 है, सो दिस इज 5.5। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूं? वॉल्यूम मल्टीप्लाई विथ मोलैरिटी इज कॉल्ड नंबर ऑफ मोल्स, मोल कॉन्सेप्ट। m/10 का मतलब होता है 0.1 मोलार, m/10 का मतलब होता है 0.1 मोलार, m/5 का मतलब होता है पॉइंट क्या 0.2 मोलार। ठीक है, ये m/10, इसका मतलब ये मत समझिए कि सर मोलारिटी तो दी ही नहीं है भैया। मोलारिटी m/10 का मतलब होता है, m/10 का क्या मतलब है, नथिंग बट 1/10 है, नथिंग बट 0.1 मोलार। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, मैंने बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज 5.5 मिलीमोल, दिस इज 4.5 मिलीमोल, क्या हो गया 1 मिलीमोल ऑफ H प्लस आयन डिवाइडेड बाय टोटल इज 100, सो 10 टू द पावर -2 क्या आ गया आपका H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, pH क्या हो गया +2। आगे बढ़ेंगे, 75 इंटू 75 डिवाइड बाय 5 करते हैं, तो दिस इज कमिंग टू बी आई थिंक 1.5, सो आई थिंक 1.5 मिलीमोल, 1.5 मिलीमोल ऑफ H प्लस आयन। देन दिस इज व्हाट, बताइए कितना होगा, करेक्ट ना, नो सॉरी, रियली सॉरी, ओके 15 मिलीमोल, दिस इज कितना है 5 मिलीमोल, टोटल हो गया 10, सो 10 मिलीमोल ऑफ आपका H प्लस आयन बच गया, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 75 प्लस 25 टोटल 100, सो 10 टू द पावर -1 आपका H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है, क्या है 10 टू पावर -1 मोलार H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है। दिस इज pH इज इक्वल टू 1 आई थिंक, एंड यू गेट द आंसर। ठीक है, तो ये आपका क्या है pH, इसका आपका 1 है आंसर। इसको भी चेक ही कर लेते हैं लगे हाथों। ये आ रहा है आपका कितना 10 मिलीमोल H प्लस आयन, 10 मिलीमोल OH आयन, दोनों को जोड़ दिया 0। अब आपके सॉल्यूशन में H प्लस आयन है ही नहीं, इसका pH हो जाएगा 7। ठीक है, तो ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने चेक किया कि एग्जैक्टली जो आपका रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसमें H प्लस आयन है कि नहीं है, अगर है तो कितना है, और अगर कितना है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है। कॉन्सेंट्रेशन मैंने निकाला, यहाँ 7 आ गया pH, यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे आपको देखा हमने क्या हो रहा है। अब आपको मैं ये जो तरीका है वो तो बता दिया कि नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ H प्लस कैलकुलेट कीजिए, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ OH माइनस कैलकुलेट कीजिए, उसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो 2 मिलीमोल से डिवाइड बाय 100 ml, सो दिस इज 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मोलार आपका कॉन्सेंट्रेशन है। pH बनाइए तो क्या होगा 2 माइनस log 2, दैट इज 2 माइनस 1 0.3, दैट इज 1.7 आ रहा है, दैट इज नॉट 1। ओके, सो सिमिलरली ये भी है, ये 2 आ रहा था, ये बंदा आपका 1 आ रहा था प्रीवियस प्रॉब्लम। अब इसको कैसे सॉल्व करते, मान लीजिए इसको अगर आपको मान लो 30 सेकंड्स के अंदर सॉल्व करना होता तो कैसे सॉल्व करते। मैं ऑप्शंस को देखता, क्या ऑप्शंस को देखता कि pH 1 का ये मतलब है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन सबसे ज्यादा होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन सबसे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन सबसे ज्यादा होना चाहिए, पर आपको देखा यहाँ पे m/10 है, तो दोनों में क्या है एसिड का कॉन्सेंट्रेशन और बेस का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है। ठीक है, इसका क्या मतलब, दूसरा इन्फॉर्मेंस, अगर आपका एसिड और बेस का कॉन्सेंट्रेशन बराबर गिवन है तो वॉल्यूम ऑफ एसिड ज्यादा होना चाहिए, तभी तो उसमें ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो मैं देखूंगा कि किसमें वॉल्यूम ऑफ एसिड ज्यादा है कंपेयर टू बेस। तो यहाँ देखा 60-40 है, 50-45 है, 55-45 है। यहाँ पे देखिए जो वैल्यू इज वेरी 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 हाई कंपेयर टू ये क्या कहते हैं आपका बेस। तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रेट अवे इस ऑप्शन के पास जाके इसको चेक करूंगा। मैं इन दोनों को चेक करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, उनको चेक करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब देखिए अगर आपका दुर्भाग्य हुआ तो हो सकता है ऑप्शन नंबर सी आपका गलत निकल जाए। ठीक है, पर मेरा तो सौभाग्य है और ये क्या हुआ, ये आपका ऑप्शन सही निकल के आया है, दैट इज pH 1 निकल के आया है। ठीक है, तो जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक नॉलेज है उसको अप्लाई कीजिए एग्जाम में, प्रश्न को सॉल्व करने में, तो चीजें बड़ा ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो अभी अभी हमने आज क्या देखा, pH कैलकुलेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, डिफरेंट, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का अलग मिक्सचर हो, स्ट्रॉन्ग बेस का अलग मिक्सचर हो तो हमने pH कैलकुलेशन किया। मेन मुद्दा क्या है, या तो आपको हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन पता कीजिए, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन पता कीजिए, और pH जो भी पता करना है पता कीजिए। यहाँ में क्या है, आपको रिजल्टिंग सॉल्यूशन में क्या बच रहा है ये पता करना है, उसके आधार पर आप बता सकते हो कि आपका pH क्या है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि OH आयन बच रहा हो। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, pH के पीछे ही नहीं भागेंगे, pH भी हो जाता है।
ठीक। अगले क्लास में हो सकता है तो हम लोग क्या कहेंगे, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स देखते हैं, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड देखेंगे और उसके बाद हम लोग अगले पड़ाव पे चलेंगे, पीएच वहीं पे खत्म हो जाएगा और फिर अगला पड़ाव वहां से शुरू हो जाए। ठीक है, तो चलिए आई होप आप लोग लेक्चर एंजॉय कर रहे हो। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछते रहिए और आराम से पढ़ाई करते रहिए और मजे में रहिए। ठीक है, चलिए लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।